बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने पढ़ना है केमिस्ट्री सब्जेक्ट और क्लास 9 का जो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेंट स्टडी कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कौन कौन से कंटेंट की स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन अबाउट एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स and different theories related to the structure of atom. Next is discovery of electron, discovery of proton, discovery of neutron, Rutherford atomic model, Bohr's atomic theory, electronic configuration, isotopes and uses of isotopes. Next जो first lecture आज हम study करेंगे that is introduction and history related to atom. First study करेंगे that is Democritus व्यू। डेमोक्रिटस जो है वो एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड एटम। व्हेन वी try the word atom is derived from Latin word which means atomus. Atomus mean indivisible. It's mean atom वो चीज है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। Next, in the beginning of 19th century, John Dalton represented a theory which is called atomic theory. What is atomic theory? According to atomic theory, all matter is made up of tiny particles which are called atom, and atom is an indivisible particle. It means John Dalton theory के according जितना भी मैटर है वो स्मॉल या टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और जब हम पार्टिकल्स की नेमिंग की बात करते हैं, दे आर कॉल्ड एटम। और जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम जो है दैट्स आर अनडिवाइडेबल, जो फर्दर अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं हो सकते, indivisible particles. But when we talk about the beginning of 20th century brought revolution in the history about the concept of atom. Different experiments and discoveries which are performed by Rutherford, Bohr, J.J. Thomson, Goldstein and Chadwick when they discovered proton, electron and neutron. The concept about atom, which is called that atom is an indivisible particle, was wrong. After that, the new definition about atom is that atom is composed of subatomic particles. When we talk about subatomic particles are proton, electrons and neutrons. Next जो है हमारा लेक्चर उसमें next है based upon these observations and different theories which are related to the discovery of proton, electron and neutron. J.J. Thomson presented another theory which is called plum pudding theory. What is the plum pudding theory? According to plum pudding theory, an atom is composed of solid positively charged particles which are present in the center of an atom, around which negatively charged particles are revolved. Negative particles stuck in the positive particles like a plum in the pudding. In 1886, Goldstein discovered proton, while in 1897, J.J. Thomson discovered electron. For example, what is the plum pudding theory? An atom. Next, that is discovery of electron. Discovery of electron. First of all, electron discovered by Sir William Crookes in 1879. He performed an experiment. In his experiment, he uses some apparatus that are gas which is filled in glass discharge tube, two metallic electrodes, one having negative charge, another having positive charge. The pressure inside the discharge tube kept 10⁻⁴ atmosphere and high voltage applied. After that, he observed that rays move towards anode. सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया था? 1879 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की थी। सर विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट ऑपरेटर्स थे। नेक्स्ट है डायग्राम। दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब
glass discharge tube in which a gas is filled. This discharge tube is connected through high voltage battery through two electrodes. The one is called anode and the other is called cathode. Anode having positive charge, cathode having negative charge. He also used vacuum pump. What is the function of vacuum pump? The function of vacuum pump is that the pressure inside of the discharge tube must be kept minimized and at least 10 raised to power minus 4 atmosphere. After passing high voltage current, William Crookes observed some rays are emitted from cathode towards anode. These rays are named as cathode rays. After that, why these rays are also named as cathode rays? These rays are also named as cathode rays because these rays travel towards cathode and deflected towards positive plate so that these rays have negative charge. जब हम बात करते हैं कैथोड रेस की तो कैथोड रेस के हैं कि ये इमिट हुई थी कैथोड से और काम फॉरवर्ड की थी एनोड की तरफ. जब हम इन कैथोड रेस को अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ विच इज कॉल्ड एनोड. तो इनका पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करना ये शो करता है कि these rays are negatively charged. Next is the properties of cathode rays. The first property of cathode rays is that these rays move in straight line. जब हम बात करते हैं कैथोड रेस की डायरेक्शन की तो ये रेस क्या करती हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं ऑपोजिट which are perpendicular to the cathode surface. जब हम बात करते हैं perpendicular की जब कोई से भी दो ऑब्जेक्ट्स में एंगल 90 डिग्री का बनता है तो वो दोनों चीजें एक दूसरे की क्या होती हैं perpendicular होती हैं. Second property of cathode rays is that they cast sharp shadow. What do you mean by they cast sharp shadow? जब हम कैथोड रेस के पाथ में कोई सा भी ओपेक ऑब्जेक्ट रख देंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट मीन वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम इजिली देख नहीं सकते, तो ये रेस क्या करेंगी कि उस ओपेक ऑब्जेक्ट के शैडो को शो करेंगी, कास्ट करेंगी. नेक्स्ट इज these rays are negatively charged. जब हम इन रेस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये रेस क्या करेंगी कैथोड से एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी. कैथोड से एनोड की तरफ नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होना ये शो करता है कि ये जो रेस हैं these are negatively charged. Next property about cathode rays is that they raise temperature. What do you mean by the raise temperature? When an object is placed between the path of cathode rays, they raise the temperature of that body. Next is produce light. When cathode rays strike with the walls of discharge tube, they produce light. The next property of cathode rays is that independence on the nature of gas. What it means? जब हम कैथोड रेस की नेचर की बात करते हैं या टाइप्स की बात करते हैं तो आप डिस्चार्ज ट्यूब में एनी टाइप ऑफ गैस यूज करोगे, एनी टाइप ऑफ गैस यूज करोगे तो एनी टाइप ऑफ गैस जो है वो सेम टाइप ऑफ कैथोड रेस प्रोड्यूस करेंगे. इट्स मीन जब हम कैथोड रेस की नेचर की बात करते हैं तो वो गैस की नेचर पे, गैस के टाइप्स पे डिपेंड नहीं करती. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई कैथोड आफ्टर इट्स डिस्कवरी J.J. Thomson finds the charge by mass ratio of cathode rays. What do you mean by charge by mass ratio? J.J. Thomson ने क्या किया था कि कैथोड रेस की चार्ज और मैस को फाइंड आउट किया था और मैस और चार्ज को फाइंड आउट करने के बाद इनको इलेक्ट्रॉन्स का दे दिया गया था. Why cathode rays are also called electrons? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कैथोड रेस की because these rays cast shadow. It's mean जब हम कैथोड रेस के पाथ में कोई सा भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कैथोड रेस क्या करती हैं उस ओपेक ऑब्जेक्ट के शैडो को शो कर देती हैं, शैडो को कास्ट कर देती हैं. जब शैडो को कास्ट करती हैं तो शैडो को कास्ट करना ये शो करता है कि ये जो रेस हैं इन रेस में पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट है. उस पार्टिकल नेचर का प्रेजेंट होना ये शो करता है कि उसने क्या किया एक ओपेक ऑब्जेक्ट के शैडो को शो किया. इट्स मीन दीज आर नॉट ओनली रेज, इन फैक्ट दीज आर फास्ट मूविंग particles which are named as electrons. That's all about
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अ साइंटिस्ट whose name is Goldstein, in 1886 he observed that when cathode rays are produced in the discharge tube, some other rays were also produced in the discharge tube, and the direction of that rays is opposite to the cathode rays. इस चीज को फुली सेटिस्फाइड करने के लिए गोल्डस्टीन ने क्या किया था कि जो सर विलियम ब्रूक्स ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर उसने एडजस्टमेंट किया, मोर उसको परफॉर्म किया। जैसे उसने क्या किया कि जो कैथोड यूज किया वो कैथोड क्या था, परफोरेटेड था। परफोरेटेड मीन कि कैथोड में क्या प्रेजेंट थे, होल्स प्रेजेंट थे। जब होल्स के अलावा नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व किया कि that rays produce glow on the walls, they are therefore they are called canode rays। नेक्स्ट हम डायग्राम में ये सारा प्रोसेस स्टडी करते हैं। गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब ली, डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किए। The one is named as anode, the other is named as cathode, and both electrodes are attached to high voltage battery। जस्ट उसने सिंपल एक डिफरेंस किया, वो ये किया कि जो कैथोड यूज किया वो कैथोड कौन सा यूज किया, परफोरेटेड कैथोड यूज किया। जब हम परफोरेटेड कैथोड की बात करते हैं तो आप देखिए कि इस परफोरेटेड कैथोड में क्या है, होल्स प्रेजेंट है। क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास किया, गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कैथोड से तो रेस प्रोड्यूस हो रही हैं जिनकी डायरेक्शन कैथोड टुवर्ड्स एनोड है, और इन रेस को क्या नेम दे दिया था हमने, कैथोड रेस का नेम दिया था। लेकिन उसके साथ साथ डिस्चार्ज ट्यूब में अदर टाइप ऑफ रेस भी प्रोड्यूस हुई हैं, और इन रेस की डायरेक्शन क्या थी, एनोड टुवर्ड्स कैथोड। ये क्या थी, कैथोड रो इसके ऑपोजिट थी। ऑपोजिट होने के अलावा जितने भी होल्स कैथोड में थे, ये रेस उन कैथोड होल्स में से ऐसे पास आउट हुई हैं जैसे कैनाल में से पास आउट होने के बाद डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल में से स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर देती हैं, ग्लो। तो आप देखिए कि जब यह नोड से टुवर्ड्स कैथोड मूव करती हैं, परफोरेटेड कैथोड में मूव करती हैं, तो ये क्या करती हैं कि परफोरेटेड कैथोड में जो होल्स हैं उसमें ऐसा कैनाल मूव करती हैं। दैट्स व्हाई दीस आर आल्सो नेम्ड एज कैनाल रेस। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेस, canal rays travel in straight line but opposite to the cathode rays। क्या होता है कि जो कैनाल रेस है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है लेकिन ऑपोजिट टू द कैथोड रेस मूव करती है। ऑपोजिट कैथोड रेस मूव करना मीन दे हैव पॉजिटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज कैनाल रेस ये कैसे होंगी कि जब हम इन पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगी तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये जो कैनाल रेस है ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स कैथोड नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होना ये शो करता है कि कैनाल रेस पे जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट है नेचर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ कैनाल रेस, the nature of canal rays depend on the nature of gas। this concept is opposite to the cathode rays। जब हमने कैथोड रेस की प्रॉपर्टी में पढ़ा था तो कैथोड रेस की प्रॉपर्टी में ये था कि कैथोड रेस की जो नेचर है वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन जब हम कैनाल रेस की नेचर की बात करते हैं तो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पे। डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल रेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, when we talk about the origination of canal rays, the canal rays do not originate from anode। जस्ट क्या होता है कि एनोड से टुवर्ड्स परफोरेटेड कैथोड मूव करती हैं, ये एनोड से ओरिजिनेट या प्रोड्यूस नहीं होती। ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, हम प्रीवियस स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं। देखिए हमने क्या किया था कि डिस्चार्ज ट्यूब में गैस, अब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इसमें कैथोड रेज भी प्रोड्यूस हुई हैं। वो कैथोड रेज के इंडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, आयोनाइज कर देंगे।
आयोनाइज करने के बाद हम गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करने के बाद उनको पॉजिटिव आयंस में मूव कर देंगे और ये पॉजिटिव आयंस जो है ये इनडायरेक्टली क्या है, कैनाल रेज है। इट्स मीन कैनाल रेज आर नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। नेक्स्ट, जब हम कैनाल रेज की बात करते हैं तो कैनाल रेज का जो मास है या चार्ज है वो किसके इक्वल आता है, प्रोटॉन के। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नेम्ड एज प्रोटॉन। और जब हम एक प्रोटॉन के मास का कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रॉन से, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड ने एक प्रेडिक्शन की थी। रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्शन की थी कि जब हम एज अ होल एटॉमिक मास की बात करते हैं किसी भी एटम के, तो फुली जस्टिफाई नहीं हो सकता ओनली द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्ट किया था कि एटम में कोई थर्ड पार्टिकल भी प्रेजेंट है। वो थर्ड पार्टिकल का जो मास है दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोटॉन। उस थर्ड पार्टिकल के जो मास को जब हम करेंगे टोटल, तो किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल मास ऑफ द एटम। Rutherford prediction, there are some neutral particles in addition to electron and proton in an atom, because mass of an atom cannot be explained on the basis of protons and electrons. Next is discovery of neutron. रदरफोर्ड की प्रेडिक्शन को लेके एक साइंटिस्ट थे। रदरफोर्ड ने जो प्रेडिक्शन दी थी वो 1920 में दी थी। 1920 में इस कॉन्सेप्ट को लेके चैडविक एक साइंटिस्ट थे जिनका काम अल्फा पार्टिकल्स पे ज्यादा था। चैडविक ने क्या किया कि इवेंचुअली न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस किया। चैडविक का जो मोस्टली काम था वो अल्फा पार्टिकल्स पे था। जब हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है। हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं। तो यू मीन बाय हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई मैटर है, इस मैटर के सम एक्सटेंट तक, इस मैटर के जब आप अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करोगे तो उस मैटर के सम एक्सटेंट तक क्या हो जाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स की एब्जॉर्बेंस हो जाती है। तो हम इन रेडिएशंस को क्या नेम देते हैं, पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस का नेम देते हैं। चैडविक ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में चैडविक ने क्या किया था, बेरिलियम को एज अ टारगेट लिया था और बेरिलियम को एज अ टारगेट लेके बेरिलियम पे क्या किया था, बम्बार्डमेंट की थी अल्फा पार्टिकल्स की। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो कोल प्रोड्यूस हुआ और कोल की प्रोडक्शन के साथ साथ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई। वो जो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस थी दे वर गिवन नेम एज न्यूट्रॉन्स। और हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन मीन पास थ्रू मैटर फॉर सम एक्सटेंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन हैविंग नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन इज दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग मीन कि इनकी किसी भी मैटर में सम एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब होने की जो पावर होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट है जब हम मास की बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। दैट्स ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, हमने स्टार्टिंग में प्लम पुडिंग थ्योरी भी पढ़ी थी। प्लम पुडिंग थ्योरी प्रेजेंट की थी जे थॉमसन ने। प्लम पुडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब एज अ होल एटम की बात करते हैं तो एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर में मूव करते हैं, मूव नहीं करते, स्टक करते हैं, लाइक अ प्लम इन द पुडिंग। तो रदरफोर्ड ने भी एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बेसिकली क्या था, टू अंडरस्टैंड हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोएग्जिस्ट इन एटम। कि किसी भी एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज है विच आर कॉल्ड प्रोटॉन्स और जो नेगेटिवली चार्ज है विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट जो किया वो एक गोल्ड फॉइल पे किया और गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी दैट इज 0.0004 सेंटीमीटर थिक। आप इतनी
कम थिकनेस की गोल्ड फॉइल यूज क्यों की थी? इसलिए यूज की थी कि अल्फा पार्टिकल्स की जब बम्बार्डमेंट की जाएगी गोल्ड फॉइल पे तो इजी उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व किया जा सके। नेक्स्ट उसने क्या किया? बम्बार्डेड किए अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स विच आर बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई, तो अल्फा पार्टिकल्स को रदरफोर्ड ने 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ऑब्टेन किया था। दैट 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर पोलोनियम एंड रेडियम। जब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, नेचर में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं विच आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जब हम पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, द एलिमेंट्स विच हैव एटॉमिक नंबर मोर देन 83 दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स है जो हाईली अनस्टेबल है, कंटिन्यूसली इमिशंस करते हैं। जब वो इमिशंस करते हैं तो क्या हो जाते हैं? रीजनरेट होते हैं या डिकम्पोज होते हैं। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल होने की वजह से, रेडिएशन इमिट करने की वजह से रीजनरेट या डिकम्पोज होते हैं तो अदर टाइप ऑफ वो एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज किए गए थे। 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पोलोनियम एंड रेडियम विच प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल्स थ्रू इमिशन। अल्फा पार्टिकल्स, इसके बाद क्या यूज की गई थी? फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड। क्या किया गया था कि फोटोग्राफिक प्लेट यूज की गई थी। उस फोटोग्राफिक प्लेट की यहाँ पे पोजीशन थी और वो या स्क्रीन यूज की गई थी और उसको किसमें कोटेड किया गया था? जिंक सल्फाइड में। अब आप देखें इस एक्सपेरिमेंट में ये क्या है? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या की गई है? अल्फा पार्टिकल्स के कंपार्टमेंट की गई है। जब हम अल्फा पार्टिकल्स के पाथ को देखते हैं तो आप देखिए कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो अनडिफ्लेक्टेड हुए हैं और स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो गए फ्रॉम गोल्ड फॉइल। जब आप कुछ अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट की बात करते हैं तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया है? कंप्लीटली रिबाउंस हुए हैं। रिबाउंस में रीबैक हो गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने क्या किया है कि फेयरली लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन शो किया। जब लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन शो किए तो ये बेसिकली क्या था? ऑब्जर्वेशंस थे। अब आप देखें कि ये वो अल्फा पार्टिकल्स हैं जिन अल्फा पार्टिकल्स ने लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन शो किया है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए हैं? पास आउट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ऑब्जर्वेशंस। 2 बेसिक ऑब्जर्वेशंस थी। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ द जो पार्टिकल्स थे विच आर पास थ्रू गोल्ड फॉइल क्या थे? अनडिफ्लेक्टेड थे और स्ट्रेट लाइन में मूव करके। About out of 20,000 particles, few were deflected fairly at large angles, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था, and very few rebounds back on hitting the gold foil. Few particles थे जिन्होंने लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन शो की और कुछ क्या हो गए? रिबाउंस बैक हो गए या रिपेल बैक हो गए। इन 2 ऑब्जर्वेशंस की बेस पे नेक्स्ट क्या थी? रिजल्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। The first result, most of the volume occupied by an atom is empty. जैसा कि हमने ऑब्जर्वेशंस में पढ़ा था कि most of the rays, most of the alpha particles are undeflected. Most of the particles का undeflected होना मीन कि easily गोल्ड फॉइल में से पास आउट हो जाना ये शो करता है कि जब हम एटम की एज अ होल वॉल्यूम की बात करते हैं तो most of the volume occupied by an atom is empty. Next, deflection of few particles. कुछ particles ने deflection भी शो किया और किस पे शो किया? लार्ज एंगल्स पे। लार्ज एंगल्स पे few particles का deflection शो करना, ये deflected होना ये शो करता है कि जब हम एक एटम के सेंटर की बात करते हैं तो एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक्स्ट, रिबाउंस ऑफ फ्यू पार्टिकल्स। उन फ्यू पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स का रिबाउंस हो जाना। रिबाउंस में रिपेल बैक हो जाना। जब हम रिपेल बैक की बात करते हैं टकरा के वापस मुड़ जाना। रिपेल बैक हो जाना ये शो करता है कि जब हम
पॉजिटिव चार्ज mass की बात करते हैं which is present in the center of an atom which is called nucleus। तो जब हम न्यूक्लियस के नेचर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। इतना डेंस और हार्ड तो है कि कुछ पार्टिकल्स ने क्या किए, कंप्लीट रिबाउंस शो किए, रिपेल्ड है। नेक्स्ट है few particles deflection show size of nucleus is very small as compared to the volume of an atom। जैसा कि हमने रिजल्ट में पढ़ा था कि अगर 20,000 पार्टिकल्स पास बम्बार्डेड हुए हैं ओवर गोल्ड फॉइल तो 20,000 पार्टिकल्स में से जस्ट फ्यू पार्टिकल्स थे जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो की लार्ज एंगल्स पे, कुछ पार्टिकल्स ने क्या किया, रिबाउंस व्यक्त हो गए। तो कुछ पार्टिकल्स का, फ्यू पार्टिकल्स का ये शो करता है कि जब हम एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज मैस की बात करते हैं विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, वेरी स्मॉल इन साइज है as compared to the volume of an atom। next है results। next भी results है। next हमारा ये रिजल्ट है कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की इन एटम, तो इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus of an atom। जब हम एज एटम की बात करते हैं, एटम एज अ होल इज अ न्यूट्रल। Why an atom as a whole is a neutral? An atom as a whole is neutral। जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और एटम के अराउंड सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर एक एटम में नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल आप कार्बन के एग्जांपल ले लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 में कि कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है। तो जब आप किसी भी एटम की बात करते हैं, न्यूट्रल एटम की, तो किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है तो इसमें उस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। 6 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे, 6 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने की वजह से एन एटम एज अ होल इज कॉल्ड न्यूट्रल, जिसकी वजह से एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन। जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स व्हिच आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दैट्स ऑल अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने क्या पढ़ा, रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्ट करना था, ये जजमेंट करना था, ये फाइंड आउट करना था कि किसी भी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या किया, गोल्ड फॉइल ली। गोल्ड फॉइल की थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर थी और उसके ऊपर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। जब हम अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई है। अल्फा पार्टिकल्स के हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं और अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्टेन कहां से किया, 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स व्हिच आर कॉल्ड पोलोनियम एंड रेडियम। These 2 radioactive elements during emission produce alpha particles। इसके बाद क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। बम्बार्डमेंट के बाद उस रिजल्ट को एक स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट पे शो किया। 3 ऑब्जर्वेशन फाइंड की। 3 ऑब्जर्वेशन में क्या था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स शोज अनडिफ्लेक्शन, जो इजली पास आउट हो गया। कुछ पार्टिकल्स ने क्या शो की, डिफ्लेक्शन शो की फेयरली लार्ज एंगल्स पर, कुछ क्या हो गए, रिबाउंस कर गए। दैट्स ऑल अबाउट रदरफोर्ड। हम कंटिन्यू करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड, देयर आर सम डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। देयर आर 2 basic defects। The first is according to classical theory of radiations, electrons being the charged particles should release or emit energy continuously। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन हमें ये कहती है कि जब हम किसी भी एटम के में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है बीइंग चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट या रिलीज करेंगे। अगर वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रिलीज या इमिट करेंगे तो फाइनली वन डे दे विल बी फॉल डाउन, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सेकंड डिफेक्ट इन रदरफोर्ड मॉडल, if the electrons emit energy continuously they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed।
अगर इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल्स एनर्जी को कंटिन्यूअसली इमिट या रिलीज करते हैं तो वन डे की एनर्जी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। तो एक ना एक दिन तो एटम फॉल डाउन हो जाएंगे। अगर एटम कंटिन्यूअसली इमिट करते हैं तो एटम के जब हम स्पेक्ट्रम के ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो एटम का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होना चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल में स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया था दैट वाज लाइन स्पेक्ट्रम। दैट्स ऑल अबाउट इफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सेकंड इफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड पढ़े थे और उसमें क्या था कि जब हम इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम की बात करते तो इलेक्ट्रॉन शुड शो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। जब प्रिज्म पे व्हाइट लाइट फॉल करती है तो व्हाइट लाइट फॉल होने के बाद 7 कलर के बैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, डिफरेंट 7 कलर्स की वेवलेंथ प्रोवाइड करती है, व्हिच इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ओके, अब स्पेक्ट्रम्स की फर्दर 2 टाइप्स होती है, लाइन स्पेक्ट्रम एंड कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम में जो 7 लाइंस है ये एक दूसरे के साथ मर्ज होती है, इसलिए डिफाइंड नहीं हो सकती, और हम इस स्पेक्ट्रम को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये जो 7 वेवलेंथ हमें प्रोवाइड होती हैं जब व्हाइट लाइट पास करती है प्रिज्म में से, तो इन 7 लाइंस और इन 7 वेवलेंथ के दरमियान डिफरेंट गैप होता है या बैंड प्रेजेंट होते हैं। बैंड प्रेजेंट होने की वजह से जो हमें स्पेक्ट्रम शो होता है दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो होगा बोहर एटॉमिक थ्योरी। दैट्स ऑल। अल्लाह।